अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। यहाँ पे जी नाश्ता बना रही हूँ, रोटियाँ भी पड़ी हुई थी तो साग पड़ा था, मैंने कहा चलो साग को लगाती हूँ देसी घी का तड़का और इनके साथ अभी हम खाते हैं क्योंकि वेस्ट तो नहीं। फ्रिज में मैंने रख दी थी रोटियाँ, उस दिन लेके आए थे ना, 2-3 उस दिन गर्म कर ली थी और एक में मुझे लगता है 5 होती है और ये बड़ी मज़े की बनती हैं। तो जैसे कड़क कड़क होती है पराठा इस टाइप का बनता है। तो मैंने जो साग है उसको मैंने दोबारा से भी तड़का लगाया अदरक का और साथ चाय साथ अचार, इसका हमने नाश्ता किया। तो अभी हम जाने लगे थे बाहर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे जी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट है, पता नहीं किहड़े बच्चे का रौला पिया है। बच्चे जिथे मर्जी चीज़ां सुट के वो जाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਮਿਲਾ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਈ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੁਕਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। मतलब शुक्र है कि टेंशन खत्म हुई, नहीं तो फिर ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਹਾਏ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦਰ, ਘਰ ਠੰਡ ਸੀ। ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਮਾ ਚੁਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਣ ਸੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ जट ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ तो क्या नहीं जट के साथ नहीं करना, वो उनके साथ उनके पास भैंसें होती हैं, उनके पास मूछें होती हैं, उनके पास ऐसे। तो विशाल कहती ये क्या लॉजिक बताते हैं, उनकी मूछें होती हैं, उनकी भैंसें होती हैं, उनका बिजनेस उनका काम है। मैं क्या बस ना ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਸੁਪਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਂਝ ਦੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗਾ ਪੜਿੰਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਚਾਈ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਥੇਰੇ ਵਹਾਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ भी बनावांगी ना तो वो हम आपस में इस तरह के ना टॉपिक पे बात करते रहते हैं। वो मैं टिकटॉक पे जो वीडियो आती है ना, लड़कियों को पूछती है कास्ट का, किस कास्ट में शादी करना चाहेंगी, वो सारे कास्टा च नुकस कर देंगे सवाए अपनी कास्ट तो मैनू बड़ा हास आता। मैं पहली बारी कह दिया करो मैनू कोई सानू कास्ट पसंद नहीं सवाए अपनी कास्ट तो। हद मुक्की पई। तो खैर असी ना इत्थे चले एक्शन मार्केट च। मैं क्या हुण थोड़ा मौसम बड़ा खुल डुल गया वे, बड़ा अच्छा वैदर हो गया वे। और जो इंज दा वैदर हुंदा ना उदों फिर दिल करदा खुल डुल के सारे काम घर दे कर दो। और पता है क्या, सर्दियों में काम तो हम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, घर की सफाइयाँ भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, सारी ज़िंदगी अगर है, जितनी आपकी ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में काम तो करना ही है, वो तो रुकना ही नहीं है। लेकिन ऐसे मौसम में फिर और एनर्जी आती है और काम करने को दिल करता है। अच्छा एक्शन मार्केट में आए हुए थे, जो हमने सोचा है कि जो हमारा गार्डन है ना वो हमारे से संभलता नहीं है, वो हो गया साढ़े ते भारू।
एक काम होता है ना जो हमारे से 12 ही हो जाता है, वो हम कर नहीं सकते, तो मेरे मियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे में वो चीज़ नहीं होती कि वो हर बंदा एक बंदा हर काम कर सकते। और ये गार्डन का वाहद काम है जो मेरे मियाँ से संभला नहीं जाता। और मैं भी, क्योंकि ये शौक की बात होती है, शौक होता है लेकिन होता नहीं है, ये क्या मसला है। तो खैर यहाँ पे आए हुए थे, आर्टिफिशियल ग्रास जो होता है ना वो हम लोग सोच रहे थे कि वो लगा लेते, बजाय कि हम इसको हर सीज़न में पुट्टा पटाई करें और नया के नया आइडिया लेके आए। तो मैंने सोचा वो ले लेते हैं और उसी को लगा लेते हैं, और फिर हम ना आपे भी ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਚ। क्योंकि मेरी बहनें बहुत ज़्यादा टिप देते, बाजी आप इस तरह करें उस तरह करें। मैंने कहा बाजी मैं कैसे करूँ अकेली, मैं करके करूँगी ये करूँ है, एक कम टाइम तो ना एक ही काम हो सकता है। तो ये मेरे मियाँ को इतना टाइम भी नहीं होता और इतना मेहनत वाला काम उनको लगता है। तो खैर जिनको शौक होता है ना वो तो गर्मियाँ देखते हैं कि गर्मियाँ आए और हम ये सारा अपने जो साजो सामान है बाहर निकालें और इसको सही करें। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, ऐसे नहीं मसाले बनी हुई। अच्छा मैंने ना बाजू पे जो आज पहना हुआ ना अबाया, वो इतना उसका वो खुला बाजू है कि जो भी मैं कोई चीज़ पकड़ती हूँ ना तो वो बाया मेरा ऊपर चले जाता है और नीचे से मेरा बाजू बाहर आ जाता है। तो खैर वो आप ये ना समझना ये क्या पहना हुआ है। तो यहाँ पे आए, अभी सबसे अंदर पहले आए हैं, यहाँ से मेरे मियाँ हिलेंगे तो मैं कोई और काम करूँगी। इनको तारे नज़र आ जाएँ, इनको पेचकस नज़र आ जाए, इस तरह के काम इनको बड़े आते हैं। बिजली का काम करवा लें, को ठोका ठकाई करवा लें, को फर्नीचर जड़वा लें, और क्या काम करते हैं ये शौक से। हाँ इस तरह के जो मैकेनिकल दिमाग लड़ाने वाले काम है ना जैसे, वो बड़ा करते हैं। बिजली का काम कितना टफ है लेकिन ये करते हैं, इनको शौक है। बाकी और काम ये जो होते हैं, फर्नीचर कोई आता है, कोई मोबाइल घर में आता है, उसको सारा उसका पेपर देखना, उसके पेचकस ये पेच वकील अलग अलग करके उसको जोड़ना, कितना दिमाग लगता है, लेकिन ये करते हैं। गार्डनिंग नहीं कर सकते ना, लेकिन क्या करें अब यही हाल सोचा है कि इसके ऊपर मैं लगाऊं आर्टिफिशियल ग्रास और इसका काम करूं तमाम, तो क्योंकि हर गर्मियाँ च बड़ा मसला रहता है। अच्छा सेकंड मैं यहाँ पे अपने लिए लेने आई हूँ 2 इस तरह के मुझे कार्टून चाहिए जैसे प्लास्टिक, मैं पहले भी एक लेके गई हुई हूँ, अब 2 मुझे और चाहिए थे। मैंने कहा इस एक में ले डालूँगी इनकी चूड़ियाँ। वो बहुत छोटा बॉक्स है जो, तो वो गिरती रहती है ना, तो जब चूड़ियाँ नीचे गिरती हैं ना, एक नहीं गिरती फिर इतनी सारी गिर जाती है कि हर किसी को उठाना पड़ा है। कोई भी चीज़ निकालनी होती सबसे पहले चूड़ियाँ भुड़क के बाहर आ जाती हैं तो ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਕਣਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ताकि डिगन ना। यहाँ पे मैं एयर फ्राई के ना अंदर वो जो फ्राई करने के लिए होते हैं सैंपल, क्या कहते हैं उसको, जो अब यूज़ करके साइड पे कर ले, वो मैं देख रही थी। तो चोरस थे, फिर मैंने गोल लिया, मैंने कहा नहीं गोल ठीक है, सस्ते लगे हुए थे। वैसे तो मैं एयर फ्राई में एक जो प्लास्टिक का होता है ना वो रखा हुआ है, तो उसको यूज़ करके निकाल के वॉश करके फिर लगा लेती हूँ। लेकिन मेरा ना उसमें प्लास्टिक है तो वो थोड़ा सा डाउट मुझे होता है कि हाय प्लास्टिक भी अंदर जाती होगी। तो मैंने अब उसको ना सोचा कि निकाल के रख दूँ बाहर, और एक एक ये बच्चे लगाएं और यूज़ करें बाहर रख देना। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं सेहत के लिहाज से, मैं सोच रही थी ना। तो ये मैंने पैकेट लिए हैं। और सेकंड यहाँ पे ना आपको फ्रिज में रखने वाली जैसे सब्जियां फल वॉश करके जो होते हैं ना अंदर, वो बड़े अच्छे लगे हुए हैं, बड़े सस्ते लगे हुए हैं। लेकिन वही बात कि आप जब चीज़ें इस तरह की ले लेते हैं ना, तो ये अगर आप फ्रिज में रख लेते हैं ना तो बाकी जगह बचती नहीं है चीज़ें रखने के लिए। आपको 2 बड़ी फ्रिजें होनी चाहिए जिसमें आप एक, क्योंकि हमारे जो देसी लोग हैं ना हम, तो हमारे तो सालन चावल इतने पड़े होते हैं कि वो डब्बे रखे या ये वाले फैंसी डब्बे रखें। तो इस तरह सब्जियां और जो फलों का बना होता है ना उसी में बेहतर है वॉश करके सुखा के उसी में रख लें। ये मैंने बड़ा प्यारा मुझे लगा, मैं ये उठा के ले आई हूँ अच्छा मैंने उठाया, मैंने सोचा क्या, क्योंकि जो मेरे वाशरूम में लगी हुई है ना वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर बस बैटरी डालनी और उसके अंदर मैंने वो स्पूलिंग डाली होती है हाथ करने के लिए, धोने के लिए ना। तो ये मैंने छोड़ दी हुए लेने, लेकिन मैं ले आई हूँ। मैंने कहा इसका मैं बाद में काम करूँगी, मुझे बड़े पसंद आया कलर। और सेकंड ये वाले जो 2 लेके आई हूँ मैं, वाशरूम में मैंने बात की थी शैम्पू वगैरह रखने के लिए, तो ये मैं तो छोड़ आई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शायद इसके अंदर भी ऐसा सिस्टम है कि जो होल करने पड़े टाइलों में, तो मैं छोड़ आई। फिर बाद में मेरे मियाँ आए हैं तो वो उठा के लेके आए कि नहीं इसको होल नहीं करने पड़ना है, इसके अंदर 2 बड़े बड़े गोल गोल बने हुए तो इसके अंदर ही साथ वो फिक्स हो जाएंगे ना, टेंशन वाली बात नहीं। मैं कहा तारा तो हिलते नहीं तुसी, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜल्दी ਜल्दी ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਵੇਖਣ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਟਕੇ ਨੇ।
एक्शन मार्केट्स में मैंने वैसे भी कुछ काफ़ी चीज़ें मेरी छोटी-मोटी जो मैं जैसे वॉशरूम की स्प्रे वगैरह, टॉयलेट की इस तरह की चीज़ें लिक्विड मैं इधर से ही लेती हूँ, वो भी ख़त्म था। एक्शन का मेरा एक चक्कर लगना ही लगना था। साथ मुझे ये जो आपको दिखाया ना मैंने अभी बॉक्स वगैरह ये मैंने लेने थे मस्ट। और फिर ऊपर से ग्रास का भी आइडिया आ गया। मैंने कहा चलो एक टाइम पे ना 2-3 काम हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो वो थी टैबलेट ख़त्म हुई थी, 2-3 थी, मुझे था वीकेंड आ जाना है, तो बेहतर है मैं ये भी ले जाऊँ ना, बजाए कि फिर मैं आऊँ दोबारा। रोज़मर्रा में जाती हूँ ना तो फ़ायदा तो बड़ा होता है कि आपके पास 10% का कूपन होता है, वो लगा के तो और सस्ती पड़ जाती है। लेकिन मैं क्या आज मेरे मियाँ हत्थी चढ़े ने बिल उन्होंने देना मैं रख 10% बचा ली, बेहतर है कि तो बाद 10 यूरो कल ही लावे। मैंने जल्दी जल्दी वो टैबलेट भी अंदर रख ली। जब मेरे मियाँ साथ होते ना फिर मैं जो भारी भारी कीमत वाली चीज़ होती है जो मस्ट घर में चाहिए होती है वो मैं उठा लेती हूँ। मुझे पता है साथ होते हैं तो दे देते हैं। अच्छा मैं अकेली भी लग जाऊँ ना तो पैसे वो ही देते हैं जो मैं लगाती हूँ, लेकिन वो अपनी जेब से लगता है कि जैसे मेरी जेब से जा रहे हैं। तो उदों फिर बड़ा कंट्रोल करीदा, लेकिन जो मियाँ नाल होन ना फिर कोई कंट्रोल नहीं होंदा। फिर यही होंदा कि चलो ये भी ले ला, हालाँकि मैं बड़ा कंट्रोल करती हूँ। मेरे मियाँ को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, वो उठा-उठा के रखते जाते हैं। वो अलग बात है, मैं फिर भी इनका सोचती हूँ कि नहीं, 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 जो ज़रूरी चीज़ें थे वो ही लेती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये लेने नहीं देते, ये मेरे से भी ज़्यादा शॉपिंग की शौकीन है। आपको पता ही होगा जो मेरे शुरू से जानने वाले मेरे मियाँ को शॉपिंग का, ग्रोसरी का, इस तरह की चीज़ों का कितना शौक है। अगर मैंने एक चीज़ उठानी है, उन्होंने दूजी नाल रखनी है। वो एक चीज़ एक टाइम पे लेते हैं, वो दोनों 2 अगर बाउल है 2 उठाएँगे, 2 कप लेने हैं, 1 कप लेना है 2 लेते हैं। इनको पसंद है इस तरह की चीज़ें ना। तो ये मैं देख रही थी चाबी टाइप में, लेकिन ये पत्थर का है, बड़ा है भारी। मैंने ऐसे ही हाथ लगाया, वापस रख दिया। तो यहाँ पे मुझे ना क्या कहते हैं सेट प्यारे लगे थे, वो फूल वाला, ग्रीन वाला। तो ये प्लेटें भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसके साथ ये बिल्कुल सीधी वाली प्लेटें और कोई भी गोल वाली नहीं थी जिसके अंदर सालन वगैरह यूज़। कलेक्शन का यही होता है कि चीज़ें जैसे आती हैं ना वैसे यहाँ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे भी वीकली बर्तन, वीकली चीज़ें आती रहती हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़ौरन से आना पड़ता है। नहीं तो अगर आप सेट लेंगे बर्तनों का तो फिर वो कोई छोटी प्लेटें ख़त्म हो जाएंगी तो बड़ी रह जाएंगी, बड़ी ख़त्म हो जाएंगी तो छोटी रह जाएंगी। तो इस तरह इस मार्केट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है और जल्दी जल्दी आना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे मियाँ पिछली लाइन में रह गए और मैं आगे आ गई, हालांकि मुझे पता है उन्होंने सारी लाइनें चेक करनी है। मुझे था मैं बस वहाँ जाऊँ जो मैं लेने आई हूँ। और जब भी वो आते थे ना तो उनके बाजू पे 4-5 चीज़ें पड़ी होती थी जो वो लेने आते थे, जो वो रखने आते थे टोकरी में। मैंने कहा मैंने इतनी चीज़ें वैगन में रखती नहीं हूँ, और जब आप आते हैं तो इतनी सारी उठा के तो आप वैगन जो है ना भर जाते हैं। लेकिन उनकी चीज़ें वही थी, तारें थी, पेचकस थे, गाड़ी की चीज़ें थी। अब नई टैक्सी आई, अब नई टैक्सी के लिए अलग चीज़ें चाहिए हैं। मैंने कहा हद मुक्की पई, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ किचन लवो या कोई बेडरूम लो तो सानू होंदा ना कि हर चीज़ सारी नवी होवे। मेरे मियाँ का भी ये हाल है, उनकी एक टैक्सी है उसमें सारा सामान पड़ा हुआ है पहले वाला, लेकिन उसमें नहीं हिलाया जलाया, वो उसी में रहे। और मैं नई के गाड़ी के लिए नई चीज़ें लेना चाहता हूँ। मैं कहा बल्ले भाई मुझा लगियां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ हैं। अच्छा है, मैंने बड़े पसंद आए। मैंने वेख के ना सिंध याद आ गया। मैं क्या सिंध हो गया या सराइकी टाइप के जो लोग हैं ना मुल्तान की साइड पे, वो इस तरह के हाथों के साथ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो बड़ी प्यारी बड़ी क्यूट वाइब दे रहे थे। अच्छा ये मैं लेके आई हूँ। अच्छा वो जो स्पूलिंग वाला मैं लेके आई हूँ ना वो मैं इसके अंदर रखूँगी और स्पंज रखूँगी। मैंने रख दिया वापस, फिर मैंने उठा लिया। ये मैंने कलर लिया था ना, मैंने कहा इसको मैं रखूँगी किचन में। किचन का मैं जो ना वो चेंज करूँगी, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी मैंने कहाँ रखना है और क्या फेंकना है और क्या रखना है। ऐसी तरह मैं सेट कर रही थी। ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਸਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, अगर ਤੁਸੀਂ नॉर्मल मार्केट ਚ जाओ ना तो बहुत महंगे मिलते हैं। इनका तो मैं कूड़ा घुट को नहीं किया। मैंने कहा इनको ना मैं बाद में आऊँगी, जो मैं सोचा है ना वो मैं लेके जाऊँ पहले। पता नहीं वो भी कितने का, क्योंकि 15 यूरो का एक है ग्रास का जो ना मतलब क्या रोला, रोला ही कहूँगी। और मुझे चाहिए थे तकरीबन, मैंने 5-6 हमने सोचे थे, लेकिन जब हम लेके गए हैं ना तो हमें कम पड़ गए। अब दोबारा फिर हम लेने जाएंगे और सेटलमेंट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्यों मैं यहाँ पे आई इतनी थकन इतनी मेहनत करके और क्या नतीजा निकला। तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नाल ही रहो, वेखते रहो, तकते रहो, जाओ ना किते। तो वीडियो अच्छा मैनू याद आ गया, अज मैं हुण तां नाल याद भी करवा देवां। तो सबसक्राइब ज़रूर करियो चैनल नूं हैं। तो ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ। अच्छा जी इन्हों की ना मैं वेखन दी सा कि इन्हों जो मास्क वगैरह ना फेस मास्क इस तरह की चीज़ें वो भी मैं कुछ लेके गई थी। वो भी मास्क इनके बड़े अच्छे रहे, फ्रेश वाले इनके मास्क होते हैं, बहुत अच्छे इनके मास्क होते हैं। और साथ इनकी जो स्प्रे वगैरह वो भी होती है, लेकिन इतनी लंबी डेट मैं इस दफ़ा लेके गई हूँ बटर जो ना वो बॉडी बटर जो स्क्रब टाइप लेके आई हूँ। मैं वो चेक करती हूँ वो कैसा रहता है, अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा लिया। मैंने लिया ये वाला हाँ, कोको का नहीं कोको का नहीं लिया मैंने, एलोवे। पहले ये उठाया स्क्रब, मैंने कहा ये ले लेती हूँ। तो फिर मैंने हालांकि ये भी अच्छा था इस, तो फिर मैंने ये वाला लिया एलोवेरा का। मैंने कहा ये ले लेती हूँ स्क्रब बेस के अंदर बॉडी का। मैंने कहा ये यूज़ करेंगे ना, फिर है भी सस्ता। अगर यही DM में या रोज़मर में जाए तो 6-7 यूरो से कम नहीं मिलना, तो यहाँ पे शायद 2-2.5 यूरो का था। तो ये बड़ा अच्छा लगा था। ये था हाथ पाँव के लिए ना आपको, लेकिन मुझे ये तो इतनी बड़ी फ्लैश है, अब वाशरूम में रखी जाने की, तो वाशरूम जान लगे फिर असी सुस्ती कर देनी। तो मैं तो वैसे इस तरह की ना हाथ पाँव की छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ ताकि कैरी हो सके, जहाँ आप बैठे वहाँ पड़ी रहे, जब याद आए बंदा निकाल के लगा सकता। तो ये मैं लेके जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला इसको सेटमेंट करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो कल आऊँगी वापस। दुआ में याद रखे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।